Dear students, welcome to virtual classroom of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 9th standard students. Subject is mathematics. Let me begin the class. Dear students, last class was on ratio and proportion. We continue with the same. Those who have not seen the last video must go to that video so that it will be easy for you to follow this video. It is not only this time, every time it is a must that you should go to the last video before opening this video. And moreover, you should do the exercise regularly. Exercise, whether it is for health or whether it is in mathematics, वो तो रेगुलरली करना ही करना है, नहीं तो अपना ताकत नहीं बढ़ेगा, एक्सपर्ट नहीं बनेगा. You have already learned about the concept of what is ratio and also learned about what is meant by direct variation or proportion, right? What you studied, I would like to just mention here. Studied about direct variation, where you found that proportion, where you found that what you found that x upon y is a constant, correct? Then you studied about inverse variation or proportion, where you found that the product is constant, x into y is a constant. This is what is the main aspect you studied in the last video. And you also found certain properties of ratio and related sums were also done. Now we are moving to the topic what we can say as a comparison of ratio. What is it? It is comparison of ratio. My lessons will be in connection with your textbook only. Comparison of ratios. Okay. What is comparison of ratios mean? Comparison of ratios means you will be comparing the ratios now. So what is meant by comparing? That means if a ratio is given, which is big, which is small, वो तो सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन certain aspects you will be studying about it. For example, if you are given two ratios like 3/4 and 4/9, तो प्रॉब्लम हो गई कैसे कंपेयर करो, थोड़ा मुश्किल काम हो गया. अगर उसको समझने के लिए अगर 3/4 if you multiply both numerator and denominator with 2 and make a new ratio which is 6/8, correct? They must be equal. That's a principle. If you multiply both numerator and denominator is same, they are equal. It is otherwise you know that whenever we studied fractions, to write it in the smallest form, simple form, we used to divide it and bring it to the minimum. So 3/4 and 6/8 equal है. तो एक तो डिविजन में 6/8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में 3/4 लिखेंगे. नेक्स्ट मेथड इज सिंपल मेथड इज 3/4 इज इक्वल टू 6/8 है. तो if you cross multiply this, you will get the same answer. In that case, 3 into 8 is equal to 24. Sorry, I will not write here. 3 into 8 is equal to 24. Correct? 3 into 8. 4 into 6 is also 24. That means these two ratios are equal. Correct? This is one way of understanding whether the ratios are equal or not. Correct? So we will compare it in this way. Very simple way. We will cross multiply and see whether the ratios are equal or not. हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करने के बाद if found that they are not equal,
if found that they are not equal, then what we will do? We will write one is greater than other. For example, 4 upon 9 and 7 upon 8 ये आपको दिया गया. तो अभी का मेथड में हम क्या करेंगे? वो हमारा सॉल्यूशन ऐसा है, मेथड या सॉल्यूशन ऐसा है कि वी विल फाइंड आउट 4 इंटू 8 कितना है फाइंड आउट करेंगे, और 7 इंटू 9 हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा. फर्स्ट ये न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको. करेक्ट. सो इन दैट केस दिस इज इक्वल टू 32 एंड 9 7s आर 63. इसका मतलब इक्वल नहीं है, और हम इधर से शुरू किया ना 4 से. सो वी हैव टू से, और वी विल कम टू नो दैट 4 अपॉन 9 जो फर्स्ट मल्टीपल है, इट इज स्मॉलर दैन 7 अपॉन 8. रीजन 4 इंटू 8 इज स्मॉलर दैन 7 इंटू 9. दिस इज अ फंडामेंटल. हमेशा इतना इजी वाला नहीं मिलने वाला है. अब तो 9th स्टैंडर्ड में पहुंच गई तो थोड़ा टफ कर देगा ही, लेकिन हम तो आपको टफ करेगा. कैसे टफ बनेगा? आप एक्सरसाइज करके. एक्सरसाइज कैसे करने से टफ होएगा? एक्सरसाइज टाइम निकाल के पेपर में लिख के आंसर मिलने तक अलग अलग तरीका करके, एग्जाम्पल दे के, वीडियो देख के, गाइड देखे नहीं, टीचर दिया हुआ रेडीमेड आंसर देखे नहीं, इंटरनेट में ढूंढ के देखे नहीं, अपने आप करेगा तो यू विल बिकम टफ. नाउ अनदर थिंग, रूट 13 अपॉन 8, टाइम पास के लिए सोचो, रूट 7 अपॉन रूट 5, इसमें कौन सा बड़ा है? प्रॉब्लम में आ गया. सेम मेथड, सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन हम निकालेंगे. रूट 13 इंटू रूट 5 करेंगे, और रूट 8 इंटू 7 दोनों एक ही बात है, रूट 7. सो आपको क्या मिलेगा? 13 इंटू 5 फर्स्ट करना ही करना है, ऐसा कि लेफ्ट का ये मिलना ही मिलना है. तो इट इज़ रूट 65. सेकंड में 8 7s आर रूट 56. अभी ये तो पक्का है, दिस इज बिगर. सो नेचुरली 13 इधर न्यूमरेटर फर्स्ट का, सो वी विल राइट दैट रूट 13 अपॉन 8 इज ग्रेटर दैन रूट 7 अपॉन रूट 5. समझ में आया आपको? दिस वे वी विल conclude which one is greater or which one is not greater. Okay, चलो we will go ahead. आगे आपका टेक्स्ट बुक डिपेंडेड, ये मैं टेक्स्ट बुक डिपेंड होके ही मैं आपको समझा रहा हूँ. हमेशा इतना भी इजी नहीं रहेगा, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी डेवलप होएगा. वो कैसे है? Here is a situation, and this is example number 3 of your textbook. ये मैं क्यों स्पेशली बताया? This is something very special and you may take time to understand also. And for a teacher like me, it is very important to make you understand how the problem is solved. The question is, if A and B are integers, A and B are integers, ऐसा क्वेश्चन दिया है. इंटीजर्स मतलब 0 से आगे पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, पीछे नेगेटिव वाला नंबर भी हो सकता है. देन इट इज गिवन A इज स्मॉलर देन B एंड B इज नॉट इक्वल टू +1 और -1. एक एक कंडीशन दिया है और आपको रेशियो कंपेयर करना है. दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग. A-1 अपॉन B-1 एंड A+1 अपॉन B+1, इसमें कौन सा रेशियो, या दोनों इक्वल है क्या, बड़ा है क्या, छोटा है, ग्रेटर है क्या, स्मॉलर है, कंपेयर करना है. अभी तक जो हमारे टेक्निक के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमको जो करने को सिखाया टीचर ने वही करेंगे. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. बट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आंसर तक नहीं पहुंचेंगे. क्यों? हमको ना ए मालूम है न बी मालूम है, और जो भी आंसर मिलेगा ए बी एंड -1 × 1 1 स्क्वायर कुछ काम का नहीं है.
तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव टू सी अलजेब्रा में ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ पीछे किया हुआ फ्रैक्शन, पीछे किया हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, फ्रैक्शन का बहुत कुछ, you have a lot of techniques. Algebra is teaching you techniques of solving the problem. That's a peculiarity. Algebra is a branch of mathematics which is helping you to solve the problem with different techniques. तो ये टेक्निक जितना पढ़ा है वो अपने बैंक में है, बैंक ऑफ आवर ब्रेन, एंड उधर से वो स्ट्राइक होना मांगते, क्या करूँ अभी, अरे यार ये तो सॉल्व नहीं होने वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ नहीं होने वाला है, देन सम अदर आइडियाज टू स्ट्राइक, देन द क्वेश्चन इटसेल्फ विल हेल्प अस। ये सब काय के लिए दिया है, व्हाई दीज थिंग्स आर गिवन, प्लस और माइनस वन नहीं है, और क्वेश्चन में ये -1 है +1 सब क्या दिया है। फ्रॉम देयर वी विल कम टू एन आइडिया दैट it is given that A is smaller than B, और फिर एक चीज़ दिया है A-1, A-1 फिर वो भी B-1 से स्मॉलर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉल है, उसमें -1 माइनस किया, अगर ये -B किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, B-B करना पड़ेगा, और उसका आंसर क्या होगा, A-B इज लेस देन B-B 0 हो जाएगा, तो A-B 0 से छोटा है। ये सब करने तक हमको कुछ आइडिया ऐसा स्ट्राइक होना है कि हम कुछ ऑपरेशन करेंगे इधर। What is that? We will try to find out the difference between these two ratio. How to find out? For that simply A-1 upon B-1, say A-1 ये 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, हमको उससे वरी नहीं है, बट वी विल डू एन ऑपरेशन, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस, दैट इज सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट, व्हाट वी विल सब्ट्रैक्ट, द सेकंड रेशियो A+1 एंड B+ फ्रॉम द रेशियो। आपको एग्जाम्पल देखना है अभी नहीं, वीडियो के बाद। आपको मालूम है, see here the denominators are different. If denominators are different, you will find out its LCM. The LCM will be direct multiplication of this. What will be the LCM? B-1 into B+1 will be LCM. Then what will be the denominator? अगर B-1 के ऊपर डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर में क्या आएगा, A-1 ये जो है इंटू B+1 माइनस इधर क्या आएगा, A+1 इंटू दिस वन B-1। ये तो आपको मालूम है, ये दिखने में ऐसा नंबर नहीं है, तो भी नंबर का ही सिस्टम फॉलो करना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, A-1 B+1, A+1 A-1, वी कैन कन्वर्ट दैट इंटू AB, दिस इज A इंटू B, करेक्ट, माइनस B, that is this one, then again A into 1 which is equal to A, which will be plus in this case because both are plus, A into 1, then -1 into 1 which is equal to -1, so this will be that. From that we will be subtracting, multiplying on this side, जल्दी करता हूँ, B plus B माइनस ए, आपको समझ में आया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। एंड इधर देखो नीचे A+B इंटू A-B के फॉर्मेट है, सब चीज़ काम में आता है, B² - 1। नाउ इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट दिस ऑल ऑपरेशंस आर हियर, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, so you can open the bracket, all the signs over here will change for your information. It will become AB minus B plus A minus 1 minus A multiplied say minus AB minus B plus A plus 1 upon B² - 1, करेक्ट। अगर वैसा मिल गया तो हम क्या करेंगे, अभी इसको ज़रा ज्वाइन करने का कोशिश करेंगे, कैसे, लाइक टर्म्स, पॉलिनोमियल, सब कुछ काम में आएगा। देखो ए बी है इधर,
इधर बी है, इधर भी बी है, तो ए बी एंड ए का टर्म्स में आएगा. अल्टीमेटली इट विल बिकम 2a इधर माइनस 2b, बाकी कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट. क्यों? प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पक्का कैंसिल, राइट. और ये -1 + 1 कैंसिल, और बाकी बचा है बी ए, उसका टर्म्स में आंसर आ गया अपॉन b² - 1. ये किसका आंसर है? ये हमारा a - 1 जो क्वेश्चन में दिया था, b - 1 से जब हम a + 1 अपॉन b + 1 सब्ट्रैक्ट करने से हमको ये मिल गया. अंडरस्टूड? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस मिल गया हमको ये टर्म पे. जब हम एक टर्म पे डिफरेंस मिल गया, हमने पहले कुछ लिख के रखा था, उससे कनेक्ट हो रहा है. इधर हम a - b > 0 लिखा है, राइट. और उन्होंने दिया है क्वेश्चन में b इज नाइदर इक्वल टू +1 एंड -1. ये दोनों हमारा काम में आएगा. अभी कैसे काम में आएगा मैं बताता हूँ. वी विल रीकॉपी दैट हियर. अभी वो या उधर से इधर रीकॉपी करेंगे. मैं क्या रीकॉपी करने जा रहा हूँ? जो पहले हमने लिख के रखा था. वी नो दैट व्हाट वी नो, ये हमको मालूम है a इज स्मॉलर देन b एंड a - b = 0 हमने क्रिएट किया था. दोनों साइड से b माइनस किया क्रिएट करने से. और हमको ये बता सकते हैं b इज नॉट इक्वल टू +or -1, मतलब it can be -3 -4 or anything, it can be +4 5 +4 anything. so इसमें जो b² - 1 क्या होगा, ये b अगर +1 -1 है तो हम b² 1 लिखने जाएगा. b² विल बी पॉजिटिव, -1, तो इट इज़ मोर देन 1 है, तो 4 हो सकता है. 2 है तो 4 हो गया, 3 है तो 9 हो गया, 8 हो जाएगा. मतलब इट विल बी ऑलवेज बिगर देन 0. It will be always bigger than 0 because of this reason. Because of this reason, b² - 1 will be more than 0. क्यों? b की जगह पे क्या क्या नंबर हो सकता है? 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, या -1 -2 -3 -4. लेकिन पहले ये मना है 1 नहीं है, तो इधर 1 नहीं हो सकता है. तो ये नंबर है, माइनस होने दो या प्लस होने दो, स्क्वायर में पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0. तो अभी समझ में आया ये क्यों दिया, ये ऐसा काम के लिए दिया है. नाउ इन दिस सिचुएशन वी नो दैट दिस इज एन इक्वेशन हियर. दिस इज सेकंड. ये इक्वेशन हमको मिलने के बाद उसमें ज़रा ये b² - 1 अगर b² - 1 अगर 0 से बड़ा है तो हमारा सिचुएशन चेंज हो गया. अभी देखो 2a - 2b, वी कैन राइट इट एज 2 × a - b. करेक्ट. और हमको क्या मिला है? ये क्या है? 0. सो दिस इज इक्वल टू 0. करेक्ट. और अभी क्या मिला है? b² - 1 जो उसका नीचे है, इट इज़ बिगर देन 0. सो इन दैट केस हमारा जो इक्वेशन है 2a - 2b, एक्चुअली आपको यह याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये एक्चुअली हमारा रिजल्ट है इसका सब्ट्रैक्शन का. दिस इज इक्वल टू 0 एंड द डिनोमिनेटर इज मोर देन 0, राइट. Denominator, what is denominator? b² - 1 is greater than 0. करेक्ट. ऐसा एक सिचुएशन में आया. अगर b² - 1 is greater than 0 and this is the numerator and this is the denominator. If I write again, 2 × a - b is the न्यूमरेटर, b² - 1 इज द डिनोमिनेटर. यही कॉपी किया मैंने और कुछ लेके नहीं आया. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट इफ द डिनोमिनेटर इज बिगर एंड अपर वन, व्हाट इज द न्यूमरेटर इज
equal to 0 here in this case, the whole thing will be less than 0. हमको तो सिर्फ कंपेयर करने को ही बोला है. अभी हमारा कंपैरिजन हो जाएगा. कैसे कंपैरिजन हो जाएगा? Here this is one condition, this is second condition. ये टू कंडीशंस को हम कंपेयर करेगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा अभी? दिस इज नथिंग बट, ये जो है ना दिस वन, आपको दिखने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, नहीं तो वो नहीं दिखेगा. व्हाट इज इट? दिस इज ओरिजिनली a माइनस वन अपॉन क्या क्वेश्चन में दिया था? हाँ, b माइनस वन माइनस हमने जो स्टार्टिंग में किया था a प्लस वन अपॉन b प्लस वन का रिजल्ट है. इस ये ऐसा सिचुएशन हो गया कि लेस देन 0. अभी इफ आई ऐड both side, this one, or you can bring it to the right side, we can write it like this: a minus 1 upon p, sorry, ये आपका एग्जाम्पल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है. b माइनस वन विल बी लेस देन a प्लस वन अपॉन b प्लस वन. हमने क्या किया? प्लस किया दिस साइड एंड दिस साइड, यही प्लस किया. ये प्लस करने से ये ज़ीरो हो जाता है क्योंकि ये माइनस वाला है, इधर प्लस करने से आ जाता है. एंड इट इज़ जस्ट लाइक इक्वल टू साइन. इफ़ यू ऐड ऑन बोथ साइड, the situation won't change. Correct, na? If you, this is less and adding this much, this is more and adding that much, so naturally right side will remain greater. And now when you look at this, अभी जो मिल गया ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है. हमको यही तो कंपेयर करने को बोला था. a माइनस वन अपॉन b माइनस वन बड़ा है क्या छोटा है? देखो पीछे क्वेश्चन में जाता हूँ, ये स्क्रीन में ऐसा एक सुविधा है. क्वेश्चन क्या है उधर जाके रुकता हूँ. देखो दिस इज द क्वेश्चन. ये दोनों को कंपेयर करो. दोनों को कंपेयर करने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज़ किया, क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं होएगा, समझ में आया, तो ये मिल गया. So you got the answer. So my dear students, attempt situation complicated sums also will come, and this is an example sum of your page number 62 of your textbook. टाइम निकाल के ये टेक्निक समझ लो, क्योंकि आपका एक्सरसाइज में 2-3 सम में काम आता है. Another situation. अभी क्या क्या मैं थोड़ा रिवाइज करके जाना अच्छा होगा आपके लिए. Why? Because थोड़ा ज़्यादा नहीं होना मांगते ना वीडियो में. देखता हूँ ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंपैरिजन कर सकते हैं. आपको बताया, आप भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया. थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला आए तो भी हम करेंगे, बट इन सर्टेन सिचुएशंस लाइक दिस यू विल बी फोर्स्ड टू अप्लाई योर अलजेब्रिक नॉलेज विच यू स्टडीड बिफोर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट in order to find out which is bigger or which is. This is an example from page 62 which is little specific and important. Another situation. Suppose that if it is given, if A is to B, ratio दिया है अच्छा से, 2:1 and B is to C is equal to 4, then find special sum again a to the power of 4 upon 32b square c square whole raised to 3. तो आप मुझे पूछेंगे सर स्टार्टिंग में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रेशियो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन था, वो दो करने के बाद अभी एक डिफ़िकल्टी वाला आ गया जो आपने अभी एक्सप्लेन किया. अभी तो ऐसा ही कुछ आया है जिसमें कुछ रेशियो कंपैरिजन है ही नहीं. रेशियो दिया है, बाद में कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं है. सो वेयर इट इज़ गोइंग, तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. नाउ इट इज़ गिवन दैट वी कैन राइट इट एज a अपॉन b इज इक्वल टू 2/1, b upon c is equal to 4/1.
ओ क्वेश्चन में मैं 1 डालने भूल गया, ठीक है, राइट। ए इज इक्वल टू, जिसका मतलब क्या हो गया, ए अपॉन पी इज इक्वल टू ना, ए इज इक्वल टू 2b, इसका मतलब हो गया b इज इक्वल टू 4c। तो हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है, लेकिन a और b को b के टर्म में, c के टर्म में, लेकिन सबको एक टर्म में लाएगा तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, दैट इज अ methodology. If you can bring in all in the terms of A, B और C, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। So in that case you should apply your common sense. What I will do, I will say first, then what your textbook is saying, that also I will say. What I will do in this situation, I got A is equal to 2B, तो मैं क्या इधर है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, क्या है वो, a to the power of 4 upon 32 b square c square whole raised to 3। अभी a की जगह पे मैं क्या करेंगे, 2b डालेंगे, तो कैसे लिखेंगे, I will write 2b to the power of 4 upon 32 b square c square whole to the power of 3। ये लिखने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट, विच मीन्स 2 to the power of 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो मुझे लिखना पड़ेगा 16b raised to the power of 4 upon 32b square c square whole raised to 3, करेक्ट। तो मैं उधर b का टर्म्स में जितना है उसको सॉल्व करता हूँ। I can see that 16 and 32 है इधर, तो मेरे लिए वो 1/2 जैसा है, so I will write 1/2, 1 लिखे नहीं तो भी चलेगा। b4 and b2 अपना इंडेक्स अप्लाई करेंगे, it will become b square here, c square तो बेचारा ऐसे ही रहेंगे। So now I got 1b square upon 2c square whole to the power of 3, वो 3 कर लेके जाना है हमको हमेशा। Now in the next step I will apply the other one. What is the other one? I have got here, what is, sorry, I have got b is equal to 4c, ये मुझे पहले मिला है, तो वो b की जगह पे 4c को मैं सब्सटीट्यूट करेंगे, किधर है हमारा b, इधर है, तो वो c का टर्म्स में हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, b की जगह पे 4c होल स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3। ये 4c किधर से आया, क्योंकि हमको पहले मिला था b इज इक्वल टू 4c, कैसे मिला था, फ्रॉम द क्वेश्चन, करेक्ट। नाउ आई कैन राइट all are in terms of c, so naturally I will write this as 16c square upon 2c square whole to the power of 3, which is equal to, correct, 16 and 2 वापस कैंसिल हो जाएगा एंड c स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, अरे वाह, सब कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो गया 8 क्यूब। 8 क्यूब कितना होगा, 8 8 are 16, 8 is 64 एंड 1 more time 512 हो जाएगा। कितना मज़ा आया ना। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है, सॉरी ये सब नया नया टेक्निक है हमारा डिजिटल में। क्वेश्चन इज दिस, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, और इसका वैल्यू मिल गया 512। अंडरस्टूड? दिस वे यू कैन डू, दिस वे यू कैन डू, इन दिस वे आई विल डू, but your textbook is having another technique also. That's not, it's also good technique, same technique but in a different way. I will do that also. I will do means it is already done, गाइड में है, टेक्स्ट बुक में है, सब नेट में है, लेकिन उधर कोई बात नहीं करते ना, इसलिए टीचर का रोल आ गया। हमारे जैसा टीचर बात करते, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, इट इज़ गिवन दैट
A is to B is equal to 2 is to 1, क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं वापस, B is to C is equal to 4 is to 1, और आपको कैलकुलेट करना है a to the power of 4 32 b स्क्वायर c स्क्वायर। मैं एग्जाम्पल इसलिए अच्छा से एक्सप्लेन किया कि आपको खुद करना है एक्सरसाइज। जो बच्चे सोचते हैं मुझे टीचर करके देना है तो फिर अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहे तो कभी इम्प्रूव नहीं होगा ना। चलो बात करके टाइम वेस्ट करने को वीडियो में तो नहीं है, क्लासरूम में थोड़ा है। a इज इक्वल टू 2b मिल गया था और b इज इक्वल टू 4c मिल गया। कैसा मिल गया पहले लिखा है राइट, क्योंकि a अपॉन b इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो ये इज इक्वल टू 2b। दिस इज अगेन b अपॉन c इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, इसलिए b इज इक्वल टू 4c। ये दोनों आपको मिला था। अभी हम क्या करेंगे, वी कैन ऑल्सो से दैट a इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 4, तो a के b के जगह पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू बी के जगह पे 2 इंटू 4c दैट इज इक्वल टू 8c। तो a इज इक्वल टू 8c, देखो b इज इक्वल टू 4c, a इज इक्वल टू 8c। दोनों को हम c में कन्वर्ट किया। c में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये भी अच्छा मेथड है। a टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 32 b स्क्वायर c स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3 में हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। a के जगह पे 8c टू द पावर ऑफ 4, 32 b के जगह पे 4c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर करेक्ट, और एक की स्ट्राइक में आपको होल टू द पावर ऑफ 3 कर देंगे। जब ये करेगा तो क्या मिलेगा आपको, सेम टू सेम। अगर करने के तरीका ऐसा भी हो सकता है, 8c को कैसा लिखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू c 4 टू द पावर ऑफ 4, इसको 32 इंटू 4 के जगह पे 16 c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3। अभी कैंसलेशन का दुनिया है, ये कैसा होगा 8 2 टाइम्स 32 4 टाइम्स 4 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8 c टू द पावर ऑफ 4 मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 8 क्यूब विच इज इक्वल टू 512। दोनों केस में आपको सेम आंसर मिलेगा। थोड़ा आपको एक 4.2 एक्सरसाइज करना है। डोंट लुक इन टू द गाइड, डोंट आस्क योर फ्रेंड्स, डोंट सर्च इन द इंटरनेट। आपको ये वीडियो एग्जाम्पल्स इन द टेक्स्ट बुक सब रख के बार बार सुन के समझ के पेपर में खुद लिख के सॉल्व करना है। दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी नहीं, हर सब्जेक्ट में टेक्स्ट बुक में जो दिया है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके देगा। साइंस में भी वैसा ही है, हिस्ट्री पूरा आपको बताएंगे। कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एक लेसन में से कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, हज़ारों क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है, if you know that thoroughly, then there is no question, let anyone ask anything. The same way in mathematics, you will be understanding the concept and there will be special sums. I'm sure वो मैं special sum टाइम मिले तो दिवाली के वाले रिविजन में डाल के आपको बताने वाला है। special sum सब उठा के डालेंगे, not before that. and special sums के लिए आपको गाइड ये सब देखना भी पड़ेगा, but only when you fail to do, पहले ही आप रेडीमेड आंसर में मत जाइए। ओके, थैंक यू। वी विल गो अहेड, वी हैव लॉट टू डू, वी आर हैविंग सम ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज करके टॉपिक है। आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू दैट इन द वीडियो। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.